بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری پہنچ آپ تک آسانی سے ہوتی رہے اور جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے۔ ناظرین، مری کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جو آپ نے سوشل میڈیا پہ اور نیشنل ٹی وی میں بھی آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا۔ مری کے انتظامیہ کی بڑی بے حسی ہے، حکومت کی بھی یقیناً بڑی بے حسی تھی، مقامی لوگوں کی بھی بے حسی ہے کچھ کی۔ یہ واقعہ کیوں اور کیسے ہوا، کس طرح اتنے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں، اس واقعے کی کیا وجوہات تھیں، مری کے لوگوں کا کیا کردار تھا، حکومت اور لوکل انتظامیہ کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کیا کردار تھا، ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیاحت ہمارا شوق ہے، ہمیں کچھ بنیادی چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے، ہمیں کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ سیاحت کرنی کیسے ہے، اگر سیاحت پر جانا ہے تو ہمیں کیا انتظامات کرنے چاہیے۔ برف باری جب شروع ہوئی تو لوگ بڑی تعداد میں شمالی علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے جو سب سے قریبی علاقے ہیں اور آسان بھی ہیں، جہاں پر آپ کو سڑکیں بھی ملیں، ہوٹل بھی ملیں، تو لوگ مری کی طرف جانا پسند کرتے ہیں۔ مری کے اطراف یا قریب کے لوگوں کو اچھی خاصی سہولت ہے، وہ وہاں جانے میں آسانی محسوس کرتے ہیں اور آسانی ہے بھی۔ پنجاب کے اکثر علاقوں سے لوگ مری چلے جاتے ہیں اور ہر سال یہاں اچھا خاصا رش دیکھنے کو ملتا ہے۔ برف باری کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک لگاؤ ہوتا ہے، بچے جوان سب برف باری کو انجوائے کرتے ہیں۔ اس مرتبہ برف باری تھوڑی دیر سے ہوئی تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایک ساتھ وہاں چلی گئی۔ محکمہ موسمیات بتا رہا تھا کہ لگاتار سنو فال ہوگی اور یہ سنو فال ویکینڈ کے ساتھ جڑ گئی، یعنی ہفتہ اتوار تو چھٹی ہوتی ہی ہے، لوگ ایک آدھ مزید چھٹی کر لیتے ہیں، جمعرات یا جمعے کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ جمعے کو ٹریول کر کے لوگ مری پہنچتے ہیں۔ زیادہ تر گاڑیاں جمعے ہفتے کو مری پہنچی ہیں، یعنی جمعے اور ہفتے کو زیادہ تعداد میں لوگ پہنچے ہیں وہاں پہ۔ حکومتی وزیر اطلاعات جو ہیں فواد چودھری صاحب، وہ اعلان جاری کرتے ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ گاڑیاں مری پہنچ گئی ہیں، ہوٹلوں کے کرائے کئی گنا زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ وہ ایک طرح سے اعتراف جرم کر رہے ہیں، وہ یہ اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ بد انتظامی ہو رہی ہے، لوگ کرائے زیادہ لے رہے ہیں۔ جہاں پہ 4,000 گاڑیوں کی گنجائش ہے وہاں پہ 1,00,000 گاڑی چلی گئی ہیں یا لوگ چلے گئے ہیں، تو وہ ایک طرح سے اعتراف جرم کر رہے ہیں، کیونکہ مری میں اتنی گاڑیوں کی جگہ ہے ہی نہیں، جو ہوٹل ہیں وہ بھی اس بڑی تعداد میں نہیں ہے، جو پارکنگ ہے وہ بمشکل 10,000 تک، اگر آپ اس کو بہت زیادہ مارجن دے لیں تو بہت مشکل سے 10,000 گاڑیاں وہاں پہ سما سکتی ہیں، وہاں پہ اس سے زیادہ جگہ ہے ہی نہیں۔ اگر آفیشلی دیکھا جائے تو وہ 4,000 پارکنگ ہیں وہاں پہ، لیکن آپ بہت زیادہ مارجن دے لیں تو 10,000 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ وہاں پر اگر 1,00,000 گاڑیاں چلی جائیں اور حکومت اس کو معاشی کامیابی قرار دے، یہ سوچے بغیر کہ وہاں ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، ان گاڑیوں کو مینج کیسے کیا جائے گا، یہ مجھے بتائیے کہ ان گاڑیوں کو وہاں پہ 1,00,000 گاڑیوں کو کیسے مینج کریں گے۔ ان کے مطابق پاکستان ترقی کر رہا ہے، لیکن اب اسی بات پر انہیں تنقید کا سامنا بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہوٹلوں کے کرائے کئی گنا زیادہ ہو گئے، مطلب یہ کہ وہاں بلیک میلنگ ہو رہی تھی، نظام مفلوج ہو چکا تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا۔ 3,000 والا ہوٹل کا کمرہ 25,000 سے 50,000 تک چلے گئے کرائے ان کے، جو عام حالات میں 3,000 4,000 5,000 کا ہونا چاہیے، وہ 25 30 40 50,000 کے ہو گئے۔ ایسے حالات میں انتظامیہ کی کیا نااہلی نہیں ہے؟ اور فواد چودھری صاحب اس کو معاشی کریڈٹ دے رہے ہیں۔
लोग बहुत बड़ी तादाद में जा रहे थे, इंतजामिया सो रही थी। किसी को होश नहीं था कि इस बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं तो इनको मैनेज कैसे किया जाएगा। तो हुआ क्या, बर्फबारी शुरू हुई तो वो इतनी तेज थी कि ये बात दुरुस्त है कि हम सब लोग बर्फ गिरने को एंजॉय करते हैं, बर्फ देखने को एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो आफत बन जाती है। मुकामी लोगों से पूछें कि वो जिंदा रहने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करते हैं, उनको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। सवात हो, मालम जब्बा हो, नारान या कागान हो, दीगर कश्मीरी इलाका जात हो, गलियात हो, मरी हो, यहां पर बर्फबारी के साथ साथ बहुत सारी मुश्किलात आती हैं जो मुकामी लोग बर्दाश्त करते हैं। लेकिन सियाह चूंकि स्नो फॉलिंग को एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो उनका मामला कुछ डिफरेंट होता है। ये तो मुसलसल बर्फबारी हुई और बहुत तेजी से हुई, जो रास्ते बंद हो गए, लोग होटलों तक पहुंच नहीं पाए, गाड़ियां चल नहीं रही थी, गाड़ियां बर्फ में फंस गई थी, हजारों की तादाद में गाड़ियां सड़कों पर फंस गई थी। जो लोग गाड़ियों में मौजूद थे उनकी कैलकुलेशन जो थी वो दुरुस्त नहीं थी। यानी इंसानी जिस्म को अगर आप ठंडा करते चले जाएं तो वो 37 डिग्री इंसानी टेम्परेचर तक होता है। अगर इंसानी जिस्म के अंदर जो सिस्टम है, अगर आपको ठंड ज्यादा लगे तो जिस्म कांपने लग जाता है, कभी कभी ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। ये लोग जो गाड़ियों में बंद थे, ये लोग ट्रेन नहीं थे, ये नहीं जानते थे, इन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो सकता है उस ठंड में, उस मौसम में। ज्यादा बर्फ होने की वजह से गाड़ियों के जो साइलेंसर थे वो ब्लॉक हो गए थे, बंद हो गए थे। गाड़ियां जो थी वो जो उनका जो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर की तरफ खारिज होना था, वो बजाय बाहर के वो अंदर की तरफ दाखिल होना शुरू हो गया और गैर महसूस तरीके से ये अमवात हो गई। लोग निढाल होते चले गए, उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा है। दम घुटता गया और कुछ को शदीद ठंड की वजह से अपनी जानों से हाथ धोना पड़े। इसे कहते हैं हाइपोथर्मिया। जी, हाइपोथर्मिया यानी जिस्म लगातार ठंडा होता चला जाए, आपका जिस्मानी निजाम मफलूज हो जाता है। इसी सूरत हाल में आपके जिस्म को गर्मी चाहिए होती है उस वक्त, जो कि वहां पे उस वक्त दस्तयाब नहीं थी। आप अपने जिस्म को गर्म नहीं कर सकते थे। जिस्म को गर्म करने के लिए आपको आग की जरूरत होती है, या आप कोई बहुत हैवी काम करें, या आप एक्सरसाइज करें, आप भागें, लेकिन वो सब कुछ उस वक्त मुमकिन नहीं था। हमारे यहां सियाहत का शौक है लेकिन शऊर नहीं है। लोग सियाहत करना चाहते हैं लेकिन बगैर समझे, बगैर शऊर के। आपको ऐसे इलाकों में जाने से पहले क्या एहतियाती तदाबीर की जरूरत होती है वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। उनकी एहतियाती तदाबीर आपको पहले से करनी चाहिए। यह हुकूमत को भी चाहिए कि लोगों को गाइड करे। हुकूमत को चाहिए जितने होटल हैं, जितनी पार्किंग है, उस हिसाब से उतने ही लोगों को वहां तक जाने की रसाई दे, बाकी को रोक लिया जाए। और क्या है हिफाजती इंतजाम करने हैं और कौन कौन से इदारों को चौकस रहने की जरूरत होती है, हमारी हुकूमत को यह भी पता होना चाहिए। हुकूमत को यह तो पता था कि कितनी गाड़ियां चली गई हैं, कितने लोग चले गए हैं, लेकिन अंजाम से बेखबर थी। इतनी बड़ी तादाद में लोग चले गए थे कि अक्सरियत को होटलों में जगह मिली ही नहीं, अक्सरियत को होटल मिले ही नहीं। पाकिस्तान में लोग सैरो सेहत के लिए कैसे जाते हैं? बस तैयारी की, गाड़ी में बच्चों को बिठाया, सामान रखा और चल पड़े। ये होता है हमारे पाकिस्तान में सियाहत सैर करने की। ना होटल की बुकिंग का पता होता है, ना हम होटल की बुकिंग करते हैं, ना पता होता है कि आपको जाने से पहले कौन सी चीजों को मैनेज करना चाहिए। बस बीवी बच्चों को बिठाया, गाड़ी में सामान रखा और चल पड़े। वहां कैसे पहुंचना है यह भी हम पूरी तरह से वाकिफ नहीं होते। पूरी दुनिया में सियाहत एक इंडस्ट्री की तरह है।
आपको जाने से पहले अपनी होटल की बुकिंग करनी चाहिए। अब तो इतनी आसानी है कि घर बैठे आप सारे काम कर सकते हैं। जो लोग वहां जाकर होटल ढूंढते हैं, फिर उन्हें मुंह मांगी कीमत अदा करनी पड़ती है, फिर उन्हें उनके हिसाब से ही पैसे देने पड़ते हैं जो वो मांगते हैं, और जो अदा नहीं कर सकते उनके मुंह मांगी कीमत, फिर वो इसी तरह मुश्किल में पड़ते हैं। फिर वो गाड़ियों में रात गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको हर चीज महंगे दामों लेनी पड़ती है। हलाक होने वालों के साथ और उनके लवाहिकीन के साथ हैं हम, हमारी दिली हमदर्दियां उनके साथ हैं, लेकिन आपको पहले सारे काम मुकम्मल करके फिर जाना चाहिए। हमारे मुल्क में सब कुछ होने के बावजूद निजाम क्यों नहीं बनता? हमारा सिस्टम क्यों नहीं बनता? इसलिए कि इस सिस्टम को बनाने के लिए अगर सिस्टम बन जाए तो माफिया लूटेगा कैसे आपको? सिस्टम इसलिए नहीं बनता कि माफिया आपको लूटता रहे, अफसरान रिश्वत लेते रहे। सिस्टम बन गया तो वो लोग अपने मन पसंद, अपने मन चाहे पैसे आपसे कैसे निकलवाएंगे? सिस्टम बनाकर अवाम को ही नुकसान दे रहे हैं। ये जो सिस्टम आजकल इस वक्त बना हुआ है वो अवाम को ही नुकसान दे रहा है। अवाम की जिंदगियों की इतनी भी वक़्त नहीं कि उनके साथ कोई इंसानी सलूक किया जाए। लोग वहां से निकलने के लिए कैसे तरले और मिन्नतें कर रहे थे। अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये एक डिजास्टर था। मरी के अवाम जो थे उन्होंने लोगों को बचाने के लिए अच्छे काम भी किए, और कुछ ने उनकी मजबूरी से फायदा भी उठाया। लोग जान से गए, इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई। हमारी हुकूमत को और हमारी अवाम को भी बहुत कुछ सोचना चाहिए। हुकूमत को और इंतजामिया को ऐसे इंतजामात करने चाहिए जिनसे लोगों को सहूलियात मिलें, लेकिन लोगों को भी चाहिए, अवाम को भी चाहिए कि अपने जाने से पहले अपने इंतजामात मुकम्मल करके जाए। अगर नहीं इंतजाम तो कोई बात नहीं, ना जाए। अपने बीवी और बच्चों का ख्याल करें। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो बर्फ देखने गए थे, उनको क्या पता था कि वो उनका आखिरी सफर होगा। नाज़रीन, अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल कीजिए। छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां मत दीजिए। अल्लाह ताला आपके साथ हो।